Hello everyone, I'm Disha. I would like to Hel- Hello everyone, I'm Disha. I would like to welcome you all in our monthly webinar for the October month. And here we'll be discussing about the top scholarships for student. Further, we will interact with our scholar. And at the end of our webinar, we'll be taking up all the queries from the audience. And now I would like to welcome Mrs. Paulami Datta Pakrashi, Assistant Manager at Buddy for Study. And ma'am, I would request you to please take this webinar ahead. Thank you so much, Disha. A very warm welcome to all of you. And just like Disha said, today we will be discussing a list of opportunities for the month of October. And we will not only cover national and state level scholarships, but also education loans and student benefits scheme. So without waiting anymore, let me share my screen and walk you through all the amazing scholarship opportunities that are available this month. Let's take a look at them together. I hope my screen is clearly visible. Yes, Paul. Yes. Thank you. As you can see, we have a number of scholarship opportunities ranging from school to postgraduate level. In this very first page of this bulletin, you can all see a list of 26 opportunities that has not only consist of scholarships, but also education loan, state-wise scholarship, and student benefit schemes. So in this very first page, you can see this amazing scholarship opportunity that is offered by Tata Capital Limited. And the scholarship is the Tata Capital Punk Scholarship Program, which is open for students who are currently pursuing education in class 11, 12, and general graduation and diploma polytechnic courses. To be eligible for this opportunity, the students must have secured at least 60% of their marks in the last in the last preceding class, and the family income, the yearly family income of the applicant should be less than or equal to rupees 2.5 lakhs. So agar aap class 11 या 12 में पढ़ रहे हैं, so you will be, and if you get selected for this scholarship, so you will be getting either up to 80% of tuition fees or 10,000 rupees, whichever is less, as your scholarship amount. And for general graduation and diploma students, the award amount is up to 80% of your tuition fees or up to rupees 12,000, whichever is less. तो इसकी आखिरी डेट है 15 नवंबर 2023 एंड स्टूडेंट को हम यही एडवाइस करेंगे कि आपको अगर इफ यू थिंक यू आर एलिजिबल और इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, तो आप हमारे इस टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पेज में जाएं. आप यहाँ पे लिंक अभी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं. एंड बडी फॉर स्टडी से ही जो ये इंटायर जो बड़ी बुलेटिन है, जो ये मंथली बुलेटिन है, इसका लिंक फेसबुक के कमेंट सेक्शन में पिन किया जा रहा है. तो आप सभी को एडवाइस है कि आप लिंक ओपन करके ये स्कॉलरशिप जितने भी अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं. आगे बढ़ते हुए, we have the InfoSeps Innovate for Impact Scholarship 2023-24, and this scholarship is offered by InfoSeps Foundation, and all the students who are pursuing engineering courses such as computer engineering, information technology, artificial intelligence, data science, machine learning, जो भी engineering courses हैं. So if you are one of them, you can obviously apply for this InfoSep Innovate for Impact Scholarship. So for the eligibility, you can see if you are studying or are a resident of Nagpur, Pune, Chennai or Bengaluru, you can apply for this scholarship. बशर्ते कि आपको क्लास 10 and 12 में 60% मार्क्स अपने फाइनल एग्जाम में मिले हुए हो. तो सालाना आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
और अगर आप ये स्कॉलरशिप, अगर आप सिलेक्टेड होते स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको 50,000 पर ईयर स्कॉलरशिप, अप टू 50,000 पर ईयर की स्कॉलरशिप मिलेगी, जो 3 साल तक आपको कंटिन्यूअस मिलती रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ योर यू नो एजुकेशन प्रोग्राम. इसकी लास्ट डेट है October 22nd and it's already 14th. So anybody who is interested to apply for this scholarship must go through the page of Infosec Innovate for Impact Scholarship and apply. See, check the eligibility factors and apply for this scholarship program. Moving ahead, we have this amazing scholarship program, the DXC Progressing Mind Scholarship which is offered by DXC Technology. So this program is offered specifically for girls and transgender students. So this is an excellent initiative by DXC Technology, and any female or transgender student who are pursuing STEM courses or any female athlete who is studying in class 8 to post-graduation level can apply for this scholarship. जो STEM में graduation कर रहे हैं, at least उनकी minimum eligibility है that they should have secured a minimum of 60% of marks in their previous class or semester. और sports person, जो हम बोल रहे हैं कि female athletes के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप उनमें से हो जिनकी एज 13 to 25 years है और आपने देश को या फिर अपने स्टेट को स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे लास्ट 2 to 3 years में रिप्रेजेंट किया है, तो ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है. फॉर दैट द फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 4 lakh annual. Yearly family income should be less than 4 lakhs for graduation section, for the graduation course. And for sports person, the annual income, family income should be less than or equal to 5 lakh rupees. और इसकी आखिरी डेट है October 31st, 2023. So in case if you are selected for this opportunity, this scholarship opportunity, so in the graduation in STEM section, in that section, you are eligible for a scholarship of rupees 50,000. And if you are a female athlete who has who can be जो select होते हैं opportunity के लिए, उन्हें 1,25,000 की scholarship मिलेगी. Moving ahead, आप सभी देख सकते हैं, the next scholarship opportunity is Swami Dayanand Education Foundation Merit Cum Means Scholarship. ये स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज में एनरोल्ड है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर एंड अदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफर कर रही है. So the eligibility, as you can see, is that you must have secured at least 75% in your class 12 examination. और अगर ये फॉर्मेट CGPA के फॉर्मेट में है तो 7.5 आपका CGPA होना चाहिए. और आपकी साल की फैमिली इनकम should be less than or equal to rupees 6 lakh. और if you get selected for this opportunity, you can win a scholarship of up to rupees 2 lakh over the duration of the entire degree program. तो इसकी आखिरी डेट है October 31st, and we again like advise you, these students, अगर if you see that you are eligible for this opportunity, do not wait further. आप जाके पूरा information पढ़ के you can apply for the scholarship opportunity. Moving ahead, आप यहाँ पे सब देख सकते हो कि there are many more scholarship opportunities starting from Reliance Foundation to Santur to Alstom to Kotak Kanya. So as you can see, for Reliance Foundation, the Reliance Foundation is offering this amazing scholarship opportunity for students who are studying in first year of UG, the undergraduate courses. So the name of this scholarship is Reliance Foundation Scholarship 2023-24, and this scholarship program is eligible, is open for students who have passed class 12
with a minimum of 60% marks, or the family income should be less than 15 lakh rupees. So अगर however it's like अगर आप की सैलरी 2.5 लाख से भी, फैमिली इनकम 2.5 लाख से भी कम हो रही है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. वी विल बी गिविंग, लाइक रिलायंस इज गिविंग प्रेफरेंस टू दीज स्टूडेंट्स ऑल्सो. तो अगर आप सिलेक्ट होते हुए इस अपॉर्चुनिटी के लिए, यू कैन गेट अ स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ अप टू 2 लाख रुपीज ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री, एंटायर डिग्री प्रोग्राम. एंड आप जैसे देख सकते हैं, द लास्ट डेट इज 15th October, which is tomorrow. So anyone who is interested and who fulfills the eligibility criteria can obviously apply for this scholarship program. Sorry to interrupt, Polemy. We have our scholar Sahil Khan with us. Sahil Khan is a scholar of Badhte Kadam Scholarship, and he's currently pursuing MBBS second year from the he's pursuing MBBS from Jawaharlal Nehru Medical College, AMU, Uttar Pradesh. Hello, Sahil. Welcome to our webinar. Hello, ma'am. Now I would request Polly ma'am to please take this forward. Hello, Sahil. Hello, ma'am. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए मैम. So Sahil, हमने आपकी पूरी स्टोरी देखी है, पूरी पढ़ी है, and we are so happy that you have received such an amazing scholarship opportunity. तो साहिल, हम जानना चाहेंगे कि आपका ये जो स्कॉलरशिप जर्नी, ये कैसा रहा, मतलब क्या दिक्कतें आई और कैसे आपने सारी दिक्कतों को हटा के, रिमूव करते हुए, आगे बढ़ते हुए आज इस पोजीशन पे आप पहुंचे हैं कि आज आप सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हैं. तो प्लीज अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें. जी मैम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं 6th क्लास में जब था तो मेरे मतलब कि एक्सीडेंट हो गया था और मैं 3 साल के लिए हॉस्पिटल में डायग्नोज रहा था. 3 साल के बाद भी मैम कोई भी ऑपरेशन जो था, एक भी जो भी डॉक्टरों ने ऑपरेट किया था, कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा था. तो आखिर में जो डायग्नोज हुआ वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गई, परमानेंट, राइट लेग में. तो उस समय जैसे ही मैं 6th क्लास में ये हुआ था तो 8th 9th 10th ये सब क्लासेस छूट गई थी मुझसे. लेकिन मैं बीच बीच में जैसे जाता रहता था स्कूल, तो एग्जाम्स वगैरह करा दिए थे तो पास कर दिया था. फिर मैं 10th क्लास में आया मैम, और घर की जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो बहुत ही कम हो गई थी और मतलब कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था. जैसे तैसे 10th क्लास में मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ा और वहाँ पे मैं अपने स्कूल में भी 3rd नंबर पर आया और शायद डिस्ट्रिक्ट में आया था 10वें या 12वें नंबर पर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और फिर ये स्कॉलरशिप जो आपको अमाउंट मिली है बढ़ते कदम की तरफ से, तो कैसे आपने उन पैसों को कैसे यूटिलाइज किया, कैसे यूज किया? मैम फाइनेंशियल कंडीशन तो 10th से ही थी. तो 10th के बाद ये होता है ना कि मुझे बनना था डॉक्टर में, कि मुझे तो MBBS ही करनी है और किसी में इंटरेस्ट भी नहीं था और जो भी था. तो आगे ये मुश्किल थी कि अब साइंस फील्ड में पैसा बहुत चाहिए मैम. या तो आप बहुत अच्छे उससे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से करें, या फिर आप अगर नहीं जा पाते हैं तो वहाँ तक उस लेवल का मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं. तो मैम ये होता था कि पैसे नहीं थे तो घर वाले कह रहे थे कि देख लो जो भी होगा लाएंगे कहीं ना कहीं से, तो आप करिए जो करना है. तो इसी बीच मुझे एक हमारे टीचर हैं, उन्होंने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को बहुत कम फीस पर पढ़ा देती है. तो उसके फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं थे, तो वो भी हमारे प्रिंसिपल सर ही देते. जैसे तैसे करके मैंने मैम टेस्ट दिया और टेस्ट में मैं क्वालिफाई कर गया और मेरा एडमिशन वहाँ पे बायो फील्ड से हो गया था. तो 11th 12th मैंने वहीं से की. फिर अब इसके बाद भी मैं फाइनेंशियल तो तब भी था और उसके बाद भी ये था कि अब कोचिंग कहाँ से ले नीट के लिए, क्योंकि नीट के थ्रू आप MBBS में जाते हैं. तो नीट की तैयारी मैंने की यूट्यूब से, सेल्फ स्टडी, बिल्कुल अपने से. तो उसमें ये था कि बीच बीच में कभी ये लगता था कि यार यूट्यूब से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नीट इतना हार्ड है, टफेस्ट एग्जाम है और ओनली यूट्यूब से, और मैम कंटिन्यूटी नहीं बन पाती थी यूट्यूब पे.
या कब कौन सी कैसी वीडियो आ जाए वो देखने लग जाते थे, तो डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहे थे। लेकिन जैसे तैसे करके इस सभी जर्नी से आ गया है, और नीट का जैसे रिजल्ट आया मैम, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया उसी यूनिवर्सिटी में जिसमें मैंने 11th 12th की थी। इसके बाद फिर मैं फर्स्ट ईयर में आ गया था, मुझे HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप के बारे में पता लगा एक दोस्त के जरिए से। उस दोस्त ने कहा कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, तुम इसे भर दो, और ये डिसेबिलिटी के लिए भी है, हो सकता है इसमें आपको मिल जाए। तो मैंने कहा ठीक है, भर देते हैं। फर्स्ट ईयर में मैम एक तो बुक्स का बहुत खर्चा होता है, बुक्स MBBS की लगभग आ जाती है 15 से 20 हज़ार की। और फिर मैम MBBS में क्या होता है कि एक टैब जो होता है वो होता है, और मेरे पास एंड्रॉइड फोन था बस। और उसके बाद टाइम हॉस्टल फीस भी और छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं वो सारी एजुकेशन एम्यूनिटीज जो थी, तो मैंने ये स्कॉलरशिप फिल की। मुझे तब मैंने फिल की तो मैं मुझे इतना वो नहीं था कि ये मुझे मिल ही जाएगी, मतलब कि ये तो ठीक है भर दी अब तो मिल ही जाएगी। फिर मैंने मतलब कि कॉल आई मेरे पास कि आपका इंटरव्यू है और आप इस स्कॉलरशिप के लिए एक राउंड में सेलेक्ट हो गए हैं। मैंने कहा ठीक है मैम, कब लेना है इंटरव्यू। तो मैम जो थी हमारी, उन्होंने अंशिका मैम थी एक, तो एक मैम और थी, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया। मैम ने कहा कि ठीक है साहिल, हम आपको बाद में करते हैं इन्फॉर्म। तो जैसे तैसे कुछ दिन बाद मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए अचानक से। मैंने मैसेज देखा, मैं खुश हो गया, मतलब पैसों को देख के। फिर मैंने बुक्स वगैरह ली, और उस वक्त हाफ ईयर चला गया था मैं, बुक्स नहीं थी मेरे पास। तो उस वक्त मैंने बुक्स वगैरह ली मैम, और टैब लिया मैंने एक, और जैसे छोटे मोटे हॉस्टल के खर्चे थे, तो ये 1 लाख रुपए मैम उस वक्त तो मेरे लिए बहुत ही काम आए थे, बहुत ज़्यादा। नहीं तो हो सकता था मैं फर्स्ट ईयर में शायद इतना अच्छा नहीं कर पाता जितना स्कॉलरशिप की वजह से कर पाया। आपकी स्टोरी सच में बहुत इंस्पायरिंग है। एंड हम भी बहुत खुश है कि आप जैसे डिजर्विंग स्टूडेंट को मदद मिली, फाइनेंशियल हेल्प मिली बढ़ते कदम की तरफ से। तो आपका कोई मतलब आप कोई मैसेज देना चाहोगे जो जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स है, कोई मैसेज उनके लिए? जी मैम, मैं मैसेज देना चाहूँगा, देखो स्ट्रगल तो मैम हर किसी की ज़िंदगी में होता है। तो स्ट्रगल को या तो आप अपना हथियार बनाओ और उससे कामयाबी हासिल करो, या उससे बहाना बनाओ और वहीं पे गिव अप कर दो। तो मैम गिव अप कोई रास्ता नहीं है। आप स्ट्रगल तो हर किसी की ज़िंदगी में, स्ट्रगल को ही ज़िंदगी कहते हैं। अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर आपको सब कुछ ऐसे मिल जाएगा करा कराया, तो आप ज़िंदगी की उस अहमियत को नहीं पहचान पाएंगे जो हकीकत में है, रियलिटी जो है। तो मैं तो यही कहूँगा कि चाहे किसी के पास कुछ हो या ना हो, आप एजुकेशन लें। और रास्ते तो बहुत हैं, जैसे मैम HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप ये है, बहुत सी ऐसी स्कॉलरशिप है और भी जो नीडी स्टूडेंट्स को देते हैं आप लोग। तो मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि गिव अप कोई रास्ता नहीं है, आप मेहनत करें और उस स्ट्रगल को अपनी वो ताकत बनाकर कामयाब रहें। थैंक यू सो मच साहिल। सो व्यूअर्स अभी अगर अब देख रहे हैं, सो साहिल हैज सच अमेजिंग थिंग ही हैव सेड। थैंक यू सो मच साहिल। तो आगे बढ़ते हुए हम वापस जाते हैं हमारे बड़ी बुलेटिन में। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। So after this amazing interaction with Mr. Sahil Khan, जो कि अभी सेकेंड ईयर BBA स्टूडेंट है, हम आगे बढ़ते हैं। We will be going through this education loan programs, which is available in our website. And not just one or two, we have a number of education loan program opportunities that you can obviously go through the website of Buddy for Study. So just I would like to say that स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज जो आप यहाँ पे आपने देखा है कि इन द इनिशियल फेज ऑफ आवर सेशन, टुडेज सेशन, तो आप जैसे देखा है कि 26 scholarships are highlighted in this month's bulletin, but we would like to ensure you that currently 100 से भी ज्यादा opportunities अभी live है. So anybody of you who wish to know what those scholarship opportunities are, other opportunities are, must visit the website of Buddy for Study and explore them. And now that we are moving ahead, you can see we have a Buddy for Study education loan program. So this is an initiative of Buddy for Study along with the multiple education loan providers like banks and NBFCs.
So in this education loan program, the opportunity is open for Indian students, all the Indian students who have received admission confirmation or are pursuing graduation courses in India and abroad. तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा 18 साल या उससे ज्यादा हो, as on the date of application, you can apply for this education loan program. And you can see if your annual family income is more than 3 lakh rupees, you are eligible for it. So in case, not in case, so when you apply for this program, you can avail up to rupees 40 lakh of education loan, a collateral free loan. तो आपको यहाँ पे कुछ गिरवी वगैरह रखने की जरूरत नहीं है. So it's a collateral free loan opportunity, and it is open. This opportunity is open till October 31st, 2023. So anybody who wishes to pursue education abroad in India or abroad in, recognized institution, so you can obviously opt for the Buddy for Study education loan program. Similar to this, we also have another initiative of Buddy for Study. It's a joint initiative, Buddy for Study and Propel, named as Buddy for Study Propel Domestic Education Loan Program. So this opportunity is open for students who are studying or applying in undergraduate and postgraduate programs in India and in the academic year 2023-24. So anybody who is a permanent resident of India and has secured at least 60% marks in their class 10, 12 or bachelor's degree course, so you can apply for this loan program. In this opportunity, you can avail a loan of loan between rupees 50,000 to rupees 10 lakh rupees at an interest range between 12 to 18%. So you need to go through the opportunity, the official Buddy for Study Proper Domestic Education Loan Program page, which is present in the website, the portal platform of Buddy for Study. You can go through the entire information. बस आपको ये details वाली ये जो link पे आपको click करना है, and you will be redirected to the program page of Buddy for Study Proper Domestic Education Loan Program. और इसकी आखिरी डेट, इसको अप्लाई करने के लिए आखिरी डेट इसकी November 30th, 2023 है. Now moving ahead, आप देख सकते हैं कि दो और education loan scheme है, but this is a government initiative and from the state of Kerala and Jharkhand. So in the Kerala NMDFC education loan scheme, this is provided by National Minority Development and Finance Corporation of Kerala. So students who are pursuing job-oriented technical and professional courses with a maximum duration of 5 years can apply for this scholarship. So you need to be, you must belong to any of the religious minority group of Kerala, and your age group should be within 16 to 32 years. So if you are eligible, so you can apply for this scholarship, for this education loan scheme, and you can get a loan amount of rupees 30 lakh at a very nominal interest rate. And the good thing about the Kerala NMDFC education loan scheme, it is open, it's always open. So students who need education loan to pursue higher education, they can apply for this loan scheme any time of the year. So there is no hindrance of, there is no fixed timeline or something like that. जब भी आपको जरूरत हो, आप obviously apply कर सकते हैं इस loan scheme के लिए. Similar to this, the same thing, the National Minority Development and Finance Corporation of Jharkhand is also offering similar education loan scheme, the Jharkhand NMDFC education loan, where same thing, the course and classes similar to that of Kerala NMDFC education loan. Here also, if you are eligible under the eligibility criteria that is posted here, you can apply for a loan of rupees 30 lakh at a very nominal interest rate, and this too is open throughout the year. Moving ahead, we have state-wise scholarship. So you can see these are this scholarship opportunity is from West Bengal, और जो eligibility criteria है काफी हद तक same है इन चारों के लिए, but the program, this scholarship program
is offered to different categories of students. तो आप जैसे देख सकते हैं कि SC कैटेगरी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी, OBC कैटेगरी और प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक लेवल के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए दिया जा रहा है. सो जो भी स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं इन स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए और उन्होंने क्लास 9 और 10 में अभी जो भी पढ़ रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है. सो यू कैन सी जो फैमिली एनुअल फैमिली इनकम थोड़ा सा वेरी कर रहा है, 1 लाख से 2.5 लाख सालाना जिनकी फैमिली इनकम है तो वो यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं. और नो मोर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटीज, द स्टेट लेवल अपॉर्चुनिटीज, we always encourage all of you to go through the information pages, look through the eligibility criteria और अगर आप फिट बैठते हैं तो obviously आप जरूर अप्लाई करें. आगे बढ़ते हुए मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बहुत ही कॉमन क्वेरी हमारे मेजॉरिटी स्कॉलर्स की तरफ से आती है जब वो हमारे वेबसाइट में विजिट करते हैं कि कौन सी स्कॉलरशिप मेरे लिए बढ़िया रहेगी, किस में मैं अप्लाई करूं. तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है. यू जस्ट नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बडी फॉर स्टडी एंड रजिस्टर योरसेल्फ फर्स्ट. जब आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, जितना भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है जब आप एंटर करेंगे, यू विल बी प्रेजेंटेड विद ऑल द मैचिंग स्कॉलरशिप जैसी आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होती है. And the matching scholarship will be based on your eligibility criteria, the information that you would be entering while registering with Buddy for Study. तो इसके साथ ही साथ आपको रेगुलरली अलर्ट्स भी मिलते रहे. सो सबसे बेस्ट थिंग है कि अगर ये परेशानी की कौन सी अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हो कि नहीं, उसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है आप आए एंड बडी फॉर स्टडी में रजिस्टर करें एंड कस्टमाइज जो आपके लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है वो आपको आपके ही प्रोफाइल में आपको दिखने को मिलेगी. सो मूविंग अहेड, we are you can see the best student benefit schemes that are available on Buddy for Studies platform. अभी फिलहाल 3 अभी आप देख सकते हैं. The PM Care for Children scheme. So ये ऑफर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. एंड द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स या लीगल गार्डियंस, अडॉप्टिव पेरेंट्स कोविड-19 की वजह से जिन्होंने खोया है, तो ये उन बच्चों के लिए ये स्कीम है. सो इफ यू आर अंडर द एज ऑफ 18 व्हेन योर पेरेंट्स और whoever your legal guardian has passed away, you can apply for this scheme. So if you are selected, you can avail financial assistance of rupees 10 lakh and other benefits. And ये भी बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो पूरे साल ओपन रहती है. तो आप जब भी if you want to avail for this children scheme, you can apply by just clicking on the details. You will be transported to the main page of PM Cares of Children scheme. तो आप वहाँ पे एलिजिबिलिटी अपना पूरा पढ़िए, इंफॉर्मेशन पढ़ के आप अप्लाई कर सकते हैं. आगे बढ़ते हुए वी हैव द मध्य प्रदेश खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 2023 जो कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से दिया जा रहा है. एंड ये सिर्फ उन बच्चों को दिया जा रहा है जो मध्य प्रदेश के वासी हैं. तो ऑन they should have at least completed 15 years of their age. एंड जो बच्चे जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर है मध्य प्रदेश के, उन बच्चों के लिए ही ये एप्लीकेबल है, ये अपॉर्चुनिटी ओपन है. So this is basically sports based opportunity. So जिन बच्चों ने, अगर आपने कोई मेडल या ट्रॉफी स्पोर्ट्स कंपटीशन में अगर जीता है जो कि मध्य प्रदेश खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए फिट बैठते हैं. और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको वन टाइम एक अमाउंट, एक स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा which will be up to rupees 50,000. और ये भी साल के 365 दिन ही इसका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन रहता है. तो आप अगर if you want to apply for this program, you can go and visit the portal and apply for it. Finally, we have the central sector interest subsidy scheme जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है. And this is open for students who are pursuing technical and professional courses
from NAAC NBA accredited institutions. एंड अगर इसकी एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटी सी है. अगर आप EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आपकी एनुअल जो सालाना फैमिली इनकम है वो एटलीस्ट 4,50,000 रुपए साल की होनी चाहिए. और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको मैक्सिमम एजुकेशन लोन 10 लाख की मिल सकती है, वो भी एट अ वेरी गुड इंटरेस्ट, वेरी लेस इंटरेस्ट सब्सिडी. और ये भी साल के 365 दिन ओपन रहती है, इसकी एप्लीकेशन पोर्टल ओपन रहती है. नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वी हैव अ लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो नंबर आप देख रहे हैं इतने बच्चों ने स्कॉलरशिप, इतने बच्चों को स्कॉलरशिप मिली हुई है. तो सबसे पहले बढ़ते कदम स्कॉलरशिप 22-23 जो कि क्लास 11 और 12 के बच्चों के लिए थी, और इसमें से अभी तक 2200 बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प मिल चुकी है. आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि सेम बढ़ते कदम के जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है जनरल ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए, उसमें भी 12 से 14 बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प मिली है. सक्षम स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर क्लास 1 to 8, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ड्राइवर्स जो रहते हैं, जो व्हीकल ड्राइवर्स के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी थी, साउथ के बच्चों के लिए. तो वहां पे भी अभी तक 624 बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिला है ताकि वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शिक्षा की उड़ान, LIC, HDFC, इस तरीके के ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज है, और ये इन सारे बच्चों के नंबर्स है जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है, फाइनेंशियल हेल्प मिला है. एंड वो एंड वी आर प्राउड टू से दे आर pursuing higher education, and we are very we feel very happy to see कि कहीं ना कहीं हम भी इनके इस इनिशिएटिव की वजह से हम भी कहीं ना कहीं इनके साथ खड़े हुए हैं. इनकी फर्दर एजुकेशन के लिए हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. नाउ अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं अचीवमेंट ऑफ द ग्रोइंग स्कॉलर कम्युनिटी. तो हर बच्चा हमारे लिए यहाँ पे स्पेशल है, एंड हर स्पेशल बच्चा अपनी अपनी तरीके से हर बच्चे ने अपने आप को प्रूव किया है, प्रूव करते जा रहे हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं SK गायत्री. सो बेसिकली शी इज अ स्कॉलर ऑफ STFC इंडिया मेरिटोरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिन्होंने यंग अचीवर अवार्ड इनको मिला है, डॉक्टर कलाम अवार्ड फॉर अ प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड यूथ फेडरेशन. उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं शुभम अत्री, जिनको BPL सशक्त स्कॉलरशिप की तरफ से उनको who is a scholar of BPL सशक्त स्कॉलरशिप, and he has been successfully placed at the Indian Political Action Committee IPAC as a program coordinator. Moving ahead, we can see Subramaniam Kaluritz. He is a scholar of IDFC First Bank MBA scholarship, और उनको माइक्रोसॉफ्ट में प्रोडक्ट मैनेजर की पोजीशन उनको मिली है. Then you can see Dhriti Vora, who is a scholar of L'Oreal India for Young Women in Science Scholarship, and she has won a gold medal for being the top student in BSc Honor Statistics at Maharaja Sayajirao University of Baroda. और फिर आप देख सकते हैं कि A. Kelvin George, who is a scholarship of My Scholar and initiative of HCL Foundation, and he has secured a full-time job as a software engineer at Radiant Technology Chennai. And last but not the least, we have Nandini Agasara. So we are so happy and we are proud to say that she is a scholar of Colgate Keeping a Smiling Foundation Scholarship and Mentorship Program for Sports Person. And अभी जो currently जो Asian Games चल रहे हैं Hangzhou, China में, she has won bronze medal in the hackathon event at the 2023 Asian Games. So we are really proud, Nandini, for such an amazing feats that you have, shown at Asian Games. आपने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, and we congratulate you, heartily we congratulate you on this success. So सारे scholars, नंदिनी से, केविन से, धृति से, everybody, जो भी students हैं, please आप definitely अपने life में जो achievement आप create कर, आप achievement जो आपको मिल रही है, we are really happy to see
you all faring so well in your life. So moving ahead, आप अभी देख सकते हैं कि हम अपने वेबसाइट में like in Buddy for Studies website we post a number of articles, we post a number of news pieces, and उसमें से you can see the top scholarship LGBTQ communities in India or abroad. So you can click on the link and you can go through the entire article. आप जो information है वहां से आप देख सकते हो कि जो भी LGBTQ प्लस कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं तो कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है. So you can actually go through the entire thing, and any of the opportunity that you see yourself to be fit, you can apply for it. Now, the next thing is smart learning. How AI is transforming digital education. तो इसके बारे में भी आप जाके इस लिंक पे क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन पूरी आप पढ़ सकते हैं. And we have also shared our a detailed research on the impact of new education policy of Indian students. So not just in English, हम हिंदी में भी आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं. तो अगर आपको जानना है कि मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना क्या है, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, क्या है, तो आपको बस इसे क्लिक करके आगे पढ़ना है. इसी तरीके से और तो अपॉर्चुनिटीज भी है, वो भी है कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना. सो ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी है अनाथ बच्चों के लिए जो जिनको 4 से 8 हजार रुपए का मंथली स्कॉलरशिप मिल रहा है. तो इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आपको बस इस लिंक पे क्लिक करना है एंड यू कैन गो एंड विजिट द पेज, रीड द एंटायर थिंग. एंड फाइनली वी हैव मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जो असंगठित कर्मचारियों के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है. अगेन सेम, सो आप अगर चाहें तो वो इस लिंक पे क्लिक करके इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं. नाउ जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश को 76 ईयर्स हो चुके, 76 साल हो चुके हैं आजादी मिले हुए, बट अभी भी ऐसे बहुत मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स है, स्टूडेंट्स है, जिन्हें फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पा रही है. एक फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट की वजह से, फाइनेंशियल गैप की वजह से नहीं मिल पा रही या फिर नहीं ले पा रहे इंफॉर्मेशन, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं. तो इसके लिए बडी फॉर स्टडी ने प्रेजेंट किया है एक इंडिविजुअल फिलांथ्रोपी इनिशिएटिव जिसका नाम है काइंड सर्कल. सो काइंड सर्कल एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी रे ऑफ होप है जिसके थ्रू अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनको एक्सेस मिलता है बेसिक एजुकेशन की तरफ. तो काइंड सर्कल के अंदर आप चाहो तो खुद भी एक कस्टमाइज्ड स्कॉलरशिप प्लान क्रिएट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप जितने भी लाइक नीडी स्टूडेंट्स है उनकी आप हेल्प कर सकते हो. सो कैसे आप करोगे? तो ये जो काइंड सर्कल है, बेसिकली आप एक छोटा सा एक सर्कल ऑफ काइंडनेस आप क्रिएट कर रहे हो. एक कस्टमाइज्ड, जैसे मैंने बोला कि एक कस्टमाइज्ड स्कॉलरशिप प्लान आप क्रिएट कर सकते हो, जहां आप खुद उसके इनिशिएटिव, उसकी एलिजिबिलिटी आप खुद डिसाइड करोगे. और आप अगर चाहो तो उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेटवर्क, जिनको भी आप चाहो आप इन्वॉल्व कर सकते हो. और इसकी बहुत अच्छी बात ये भी है कि आप डिस्कवर कर सकते हो उन स्टूडेंट्स को जो आपके ही सेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट मतलब बैठ सकते हैं. सो एंड द बेस्ट थिंग इज आप अपने हिसाब से वो स्कॉलरशिप भी डिस्पर्स कर सकते हो और उनको एम्पावर कर सकते हो. सो इट्स बेसिकली लाइक यू कैन कंट्रीब्यूट टू देयर ड्रीम्स. उनके फ्यूचर को एम्पावर कर रहे हो, उनके लिए गाइड बन रहे हो, और वो भी आपके खुद के अपने कैपेसिटी में. तो ये जो प्रोग्राम है, जो टेलर मेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी ये प्रोग्राम है, आप चाहो तो इसे एक बार के लिए, वन टाइम के लिए भी आप कर सकते हो, या फिर आप अपनी ही कैपेसिटी में जितना भी फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसके हिसाब से भी आप एक प्लान क्रिएट कर सकते हो, ताकि जितने भी जैसे बहुत सारे जैसे बच्चे, मैंने अभी आपको हाईलाइट भी आप देख सकते हो कि लाइक मोर देन 150 मिलियन यंग ड्रीमर्स चाह के भी पढ़ाई जो नहीं कर पा रहे, उनके लिए आप वो दरवाजा बन सकते हो, जो नेक्स्ट वो सीढ़ी बन सकते हो, जो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है उनके ही एजुकेशन
जर्नी को फुलफिल करने के लिए। तो अगर आप इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो, सो यू कैन actually click on this, click here to book a demo session. So we have an entire team जो आपको पूरा information आपको ये demo session provide करेगा. However, if you don't want to do that, but you want to donate something, so you can make a meaningful contribution by supporting this deserving underprivileged student. तो इसके लिए बस आपको ये QR code scan करना होगा and you can donate the amount you wish to donate for these students. और हम अभी अपने इस महीने के सेशन के आखिरी दौर पे आ चुके हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी करंट स्कॉलरशिप्स जो अभी लाइव हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, चाहे वो 12th पास बच्चों के लिए हो या फिर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हो, लड़कियों के लिए हो, कोई भी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग. So you can click on any of these links और आप Buddy for या फिर आप Buddy for Study के मेन ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके आप देख सकते हैं. So last but not the least, I would like to say कि अभी तक हमने 70,051 स्कॉलर्स का अभी ये नंबर अभी अचीव कर लिया है. और जैसे आप देख सकते हैं कि 2030 में हम टारगेट करें 1 करोड़ स्टूडेंट्स, 1 करोड़ स्कॉलर्स को empower करने के लिए. So we obviously would like you to be a support to us. And as we are at the end of this session, I would like Disha to take this further. Yes, ma'am. So now we have a few queries from our audience. First of all, Rohtas Dabas is asking, what is the last date to apply for Swami Dayanand scholarship? So as you, if you have this link, जो कि हमारे इस बड़ी बुलेटिन का जो लिंक अगर आपको मिलेगा, सो स्वामी दयानंद के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आखिरी डेट जो डेडलाइन है वो है 31st of October. ऑल्दो अभी टाइम है, बट हम ऑब्वियसली आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी अपॉर्चुनिटी के लिए फिल करो. बट यस, अगेन आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से आप पढ़ के जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको सही फॉर्मेट में अपलोड करें and take your time. लास्ट दिन तक आप उसे मत छोड़े. तो like we would obviously advise 31st October से पहले ही it's better to apply for the scholarship. Yes. So now the next question is from Pratishta Thapa. She's asking, I belong to SC community of Assam state and am I eligible for Reliance undergraduate scholarship? Reliance के लिए जो है वहाँ पे स्पेसिफिकली कोई स्टेट अभी मतलब देयर इज नो स्टेट स्पेसिफिक कैटेगरी. तो रिलायंस अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल में अभी कोई भी स्ट्रीम से अगर पढ़ाई कर रहे हो, सो यस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. सो इवन इफ यू आर फ्रॉम असम, सो आई वुड ऑब्वियसली एडवाइस यू कि आप जरूर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा पढ़ें. एंड इट्स एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स पैन इंडिया. तो just go through the eligibility criteria once again, educational criteria basically. So state specific नहीं है तो yes you can apply. Okay. So now there is one more question. कीर्ति धामू ये पूछ रहे हैं कि मैंने बढ़ते कदम स्कॉलरशिप और वर्षा स्कॉलरशिप दोनों के लिए अप्लाई किया है, तो क्या मुझे दोनों स्कॉलरशिप मिल सकती है? नहीं, जो स्कॉलरशिप, इवन दो स्टूडेंट्स आर वेलकम टू अप्लाई फॉर मल्टीपल स्कॉलरशिप, बट अगर आप सपोज दोनों के लिए ही एलिजिबल होते हो, अगर आप दोनों के लिए फिट बैठते हो, सिलेक्ट होते हो, जो हाईएस्ट अमाउंट जो रहता है जिस स्कॉलरशिप का, हम वही आपको ऑफर करेंगे सो दैट यू कैन अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द आइदर वर्षा और द बढ़ते कदम वन, व्हिचएवर जो भी हाईएस्ट अमाउंट है वही आपको मिले, ताकि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो भी हो एजुकेशन के लिए वो फुलफिल हो. तो जो कोई भी एक का होगा, नॉट बोथ ऑफ इट. Okay. So now thank you so much, Pallavi ma'am, and thank you everyone for being with us. This recording of webinar will be available on Buddy for Study YouTube channel. Further, on every Saturday or every second Saturday of the month, we conduct this webinar, so you can join us on Facebook. Thank you so much for being with us.